Good morning, students. In last online session, we have completed some of the points. Now we are okay. Now we are moving for a friction point. Let us discuss how it works. So friction is caused by irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. So see one figure over here. There is two surface, that is one above surface and below surface, and between these two surfaces there are tiny grooves and spares are there, and that grooves and spare are so tiny that whenever one surface is moving across the other surface, that tiny particles lock with each other. That is how two surfaces reacts friction between them. Why? Because whenever one surface is moving over the other, there is one locking part. That locking part stops the above body to slide over the bottom body or a bottom surface. Yes, that is how this figure is working. Surface of a body and surface of a ground. Okay. So now irregularities on the two surfaces lock into each other. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome this interlocking. Whenever there is an interlocking is there, to break that interlock, what you have to do? You have to apply a force on the body which is on the above side. Yes or no? That is how a force can overcome a friction. Or else I can say a force can overcome interlocking of a surface. Yes or no? Yes. Now when we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On the rough surfaces there are larger number of irregularities, so the force of friction is greater in rough surfaces involved. So suppose we do have a two surfaces, one is smaller surface and another is big surface. So as much surface area increases, friction will increase. As much surface area will be more, friction will be more. जितना surface area कम होगा, उतना friction भी कम होगा. क्यों? क्योंकि जितना surface कम है, उतना interlocking कम होगा. That is how friction, we do have a three type of friction. पहला है surface friction, जो कोई भी जगह पे होता है. आपके जूते के और टाइल्स के बीच में भी सरफेस फ्रिक्शन होता है. अनदर इज लाइन फ्रिक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. जहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ही कांटेक्ट में आती है सरफेस के, उसको हम बोलते हैं लाइन कांटेक्ट. रोलर बेयरिंग्स में लाइन कांटेक्ट होता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है. और उसके बाद आता है पॉइंट फ्रिक्शन, जो सबसे कम होता है, जो बॉल बेयरिंग में यूज होता है, क्योंकि वो बॉल जमीन पे या सरफेस पे सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता है. दैट इज हाउ फ्रिक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द कैटेगरीज. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ऑन अ रफ सरफेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन रफ सरफेस इन्वॉल्व. स्मूथ सरफेस दे हैव लेस इरेगुलरिटीज, तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Now we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder. Here one more thing is adding. Suppose there is one object that is not at all heavy, उसका जरा भी वजन नहीं है, and that surface you have to pull from one point to another. तो क्योंकि उसका वजन कम है, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट पुशिंग द सरफेस. और पुशिंग द सरफेस नहीं हो रहा, तो वो जो लॉक है, जो इंटरलॉक है फ्रिक्शन वाला, वो उसके ऊपर बैठ नहीं रहा, और बैठ नहीं रहा तो वो चिपक नहीं रहा, तो फ्रिक्शन कम लग रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज ऑफ हैवी वेट, देन फ्रिक्शन विल बी मोर. एंड इफ अ बॉडी डू नॉट हैव मच वेट, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा. एंड सपोज अ बॉडी इज नॉट टचिंग द अनदर बॉडी, तो इंटरलॉकिंग का तो सवाल ही नहीं होता, तो देयर इज अ नो फ्रिक्शन. ओके. तो वेट जितना कम होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा, वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा.
ठीक है। अगर मोटा सा आदमी जूते पहनेगा तो उसका जूता जल्दी खराब हो जाएगा कंपेयर टू पतला आदमी, और जो हवा में उड़ रहा है उसका जूता खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस कांटेक्ट इज नॉट देयर। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. There is one experiment, you can do it at your home also. There is a mat over which you have to pull it when nobody is on that. And after that आप एक काम कीजिए, आप अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को उसके ऊपर बिठाइए और उसको स्लाइड कीजिए। You will feel that friction between mat is also there. और उसी मैट की जगह पे आपने कोई खुरदरी सी चीज़ ले ली तो उसके ऊपर फ्रिक्शन और ज़्यादा लगेगा। पानी वाला फ्लोर है तो फ्रिक्शन चेंज होगा। सो फ्रिक्शन इज हैविंग सो मच इफेक्टिव पॉइंट्स विच वी कैन कंसिडर इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. We do not have a box yet, but what we have to do in a classroom, you have to push a bench from one place to another place. You will feel that a bench which do not have a rubber soles can be moved very easily, but with a noise. But a bench with a rubber base is difficult to move from one place to another place. Now I am changing some criteria. Now what we have to do? You are moving bench from one place to another place when nobody was sat on that, but try it when one person is sat on a benches. That is somewhat difficult, but you can still change a bench from one place to another bench. Try it with a two persons, then you will feel that the friction acting on the surface of a bench and a floor is much higher. Why? Because weight is been added. वजन ज़्यादा होने की वजह से interlocking बहुत ही कड़ा हो जाता है, एंड दैट इंटरलॉकिंग कैन नॉट बी ब्रेक बाय अ स्मॉलर फोर्स। उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। अभी तक आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो अभी जहां पे है वहीं पे एक्सपीरियंस कर लीजिए। व्हाट इज इजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव द बॉक्स व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। देयर आर टू क्राइटेरियाज कि व्हिच वन इज इजी। One box is there, one bench is there, that is in a steady position, that is not moving, and you have to move it from one place to another place. That is easy, or something is moving and comes to you and you have to stop it. That is easy. Which force is easy? You can tell me. Now we are moving for a next slide. The force required to overcome the friction at the instant an object starts moving from rest, it's a measure of static friction. अभी स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? सपोज आप एनर्जी लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, पर वो चीज़ कुछ वक्त तक अपनी जगह नहीं बदलेगी। यू हैव टू ट्राई कि आप घर पे कोई टेबल है उसको स्टार्ट कीजिए पुश करना, तो आपको लगेगा कि यू आर पुशिंग, बट अप टू सम एक्सटेंट कुछ वक्त तक आपके फोर्स लगाने के बावजूद भी वो चीज़ हिलेगी नहीं। तो आपका फोर्स कहाँ पे जा रहा है? आपका फोर्स वो स्टैटिक जो लॉक है उसके ऊपर जा रहा है और उसको ऐसे धीरे धीरे खोल रहा है। देखिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, बट जब तक ये लॉक खुलते हैं तब तक वो टेबल हिलेगा नहीं, और जब तक वो टेबल हिलता नहीं और आप जो फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फोर्स, और उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Until an object moves, the force is applied over a body. That force is known as static force, and the friction which is acting between the surface until it moves from one place to another place, that force is known as a friction force. Is that easy? Okay. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. Suppose an object, ये तो हमारी static friction and static force की बात हो गई, but suppose you are riding your bike or riding your bicycle और आपके सामने अचानक कोई आ जाता है, आप you are suddenly applying a brake, तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी साइकिल का व्हील घूमना तो बंद हो जाएगा, पर आपकी साइकिल नहीं रुकेगी। आपकी साइकिल ब्रेक मारने के बावजूद योर व्हील इज स्टॉप्ड रोटेटिंग, इट इज नॉट रोटेटिंग,
बट दैट व्हील इज स्लाइडिंग ओवर अ रोड, आपकी साइकिल स्लिप हो जाएगी, यस और नो। तो उस वक्त पे इंटरलॉकिंग काम नहीं कर रहा, पर फ्रिक्शन तो है, क्योंकि स्लाइड करके वो घूमेगी तो सही। सो दैट स्लाइडिंग इज नोन एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी हाथ को रब कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पर जैसे जैसे आप हाथ को दबाते जाते हो दैट विल बिकम स्टैटिक, यस और नो। ओके। When box starts moving, the contact points on its surface do not get enough time to lock in the contact points on the floor. Whenever you start sliding a box, once you have come across the static force, एक बार आपका टेबल हिल गया तो उसने स्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर लिया है। उसके बाद स्टैटिक फोर्स जितना फोर्स आपको टेबल पे नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स आप लगा रहे हो कौन सा, स्लाइडिंग फोर्स लगा रहे हो, और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले व्हेनेवर अंटिल टेबल हिलता नहीं है एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स, दैट फोर्स इज स्टैटिक फोर्स और वो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। वंस वो टेबल हिल गया, अभी सिर्फ आपको उसको पुश करना है, तो वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज वेल एज स्लाइडिंग फोर्स। So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you will find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. Always remember, always static friction बहुत ज़्यादा होगा जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। पर अगर वेलोसिटी कम है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को मैच करने की कोशिश करता है। इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 100, देन इफ वेलोसिटी इज टू लेस, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अराउंड 98 to 99, बट इफ वेलोसिटी इज टू हाई देन उतना ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रिक्शन नेसेसरी इविल, ऐसा राक्षस जो हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। सो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इट इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हाड़, अर्थ पॉट और अ ग्लास और अ टम्बलर। सपोज द अदर surfaces of a tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become more easier or more difficult to hold it? मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, उसको आपको पकड़ना बहुत इजी हो जाता है, पर उसी ग्लास के सरफेस पे अगर मैं तेल लगा दूं या ग्रेस लगा दूं तो अभी वो स्लिपरी हो जाता है और आपके हाथ से गिर जाने के चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर हम ऐड करते हैं। ओके, जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास इफ इज इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी चीज को आप पकड़ सकते हो? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप पेन से पेज के ऊपर लिख सकते हो? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप चल सकते हो? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप गाड़ी चला सकते हो? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई चीज रुक सकती है? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप घर बांध सकते हो? नहीं। सो फ्रिक्शन is something we require the most, but at the same time वो हमारी चीज़ें भी खराब करता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यू आर यूजिंग पेट्रोल। पेट्रोल डालते वक्त मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं होता तो साइकिल के एक पेडल से आप पूरी दुनिया घूम सकते थे, यस और नो? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा, आपका मोशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यस और नो? बट ड्यू टू फ्रिक्शन एक पेडल में मान लीजिए कि आधा किलोमीटर साइकिल चल रही है, सो ड्यू टू फ्रिक्शन आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। बट इन द सेम वे फ्रिक्शन ना हो तो भी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन हो तो भी प्रॉब्लम है। तो इट इज अ नेसेसरी एविल, दैट मीन्स ऐसा राक्षस है जो हमें चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। ओके, recall also how difficult it is to move on the wet muddy track or a wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there is no friction? No, we can't walk. You could not write with pen or pencil if there is no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard,
it is the rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? No, it cannot happen. अगर बोर्ड और चॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो लाइन ही नहीं बनेगी। और ऐसा कई बार होता है, कुछ चॉक पीस खराब आ गए तो आप लिखो पर उसकी लाइन नहीं आती, तो उस टाइम पे टीचर क्या करता है, वो थोड़ा सा टिप तोड़ देता है। तो क्या वो जो नया सरफेस है वो फ्रिक्शन वाला होगा, इरेगुलर होगा, सो यू कैन राइट इट वेरी इजीली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। If an object starts moving, it would never stop if there is no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. हाँ, friction का ये भी एक advantage है कि if you are using a friction, you can change the direction. क्यों? क्योंकि एक तरह की डायरेक्शन आप कट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। बट इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो सालों साल जिंदा हुए कि मर गए तब तक एक ही डायरेक्शन में चलते जाओगे, अनटिल एंड अनलेस समवन हिट्स यू। अगर उसने आपको हिट किया तो आपकी और उसकी डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाएगी। You could not fix a nail on the wall or tie a knot. आप दीवार पे कील भी नहीं मार पाओगे और गांठ भी नहीं मार पाओगे। Without a friction, no building could be construction. अभी तक आपको जितनी बिल्डिंग दिख रही है वो भी फ्रिक्शन की वजह से खड़ी हुई है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग गुजरात में आ जाएगी और गुजरात का कोई टावर होगा वो दुबई चला जाएगा। यस और नो? क्योंकि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा। बट बिल्डिंग बनाना ही पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक ईंट दूसरी ईंट पे टिकेगी ही नहीं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवेंट। व्हाई? क्योंकि आपके जूते खराब होते हैं, टायर खराब होती हैं, हर वो चीज मशीनरी खराब होती है, पंखों में जंग लग जाता है, बहुत सारे काम होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से खराब होते हैं। इट wears out the materials whether they are screws, ball bearings, soles, shoes, etc. You must have seen worn out steps of foot ever bridges at a railway station. आपको ये भी पता है कि रेलवे स्टेशन पे जो पटरियाँ होती है वो हर 3 साल 4 साल या 1 साल में चेंज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज नहीं किया तो उसके ऊपर जो ट्रेन आ रही है, हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, फिर भी उसको चेंज नहीं किया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यस और नो? आप भी अपने स्कूटर और कार के टायर बहुत ही टाइम पे बाद में चपटे हो जाते हो तो उसको चेंज करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक लगाओ तो वो रुक जाए, और ब्रेक नहीं लगाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट भी लगता है। इफ यू वांट टू ट्राई, आप क्या करो, अपने दोनों हाथों को थोड़ा वजन देके एक दूसरे के साथ खींचो वेरी क्विकली। आप ज़्यादा तेज घिसोगे तो यू विल फील हीट, ऐसा लग रहा है कि आग लग जाएगी। यस और नो? इन द प्रीवियस टाइम ऑल्सो जब हम इवॉल्व हो रहे थे, आग लगाने के लिए भी हम लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिसते थे, क्योंकि घिसने से व्हेन यू आर रबिंग समथिंग विथ ईच अदर तो वो हीट प्रोड्यूस होता है और हीट से आग प्रोड्यूस होती है। यस, तो फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel? You will when you strike a matchstick against the rough surface, each catches fire. आपको पता है कि मैचस्टिक को एक दूसरे के ऊपर घिसा तो आग लग जाती है, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन है। कभी हवा में ऐसे किया और आग लगी, ऐसा पॉसिबल है? नो, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। और आप मुझे बताइए कि फ्रिक्शन को हीट में कन्वर्ट करने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? Okay, think it out. You might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is run for few minutes. आप घर में जब भी मिक्सचर चलाते हो तो थोड़ी देर चलाने के बाद उसका नीचे का पार्ट गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो घिस रहा है, वो उसका जो मोटर है और आपका जो मिक्सचर का वो ग्राइंडर है, वो दोनों सरफेस के ऊपर घिस जाने की वजह से वो गर्म हो जाता है। You can cite various examples in which friction produces heat. आप भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे बता सकते हैं कि जिसमें फ्रिक्शन की वजह से गर्मी प्रोड्यूस हो रही हो।
In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. हाँ, यहाँ पे जब भी मशीनरी फ्रिक्शन की वजह से गर्मी प्रोड्यूस करती है तो बहुत सारा एनर्जी का हिस्सा इज बिन वेस्टेड वेयर इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वी रिक्वायर मोर सोर्सेस. Suppose 100 unit of electricity is been given to a fan, but fan can convert only 70% of the energy. Remaining 30% energy will be lost due to friction. In the same way, in the bikes also, cycles also, your pedaling has a much power, but friction consumes all the power and gives very less effect. Yes or no? Okay. We shall discuss the way of minimizing the friction in the following section. In the following section, we will learn कि फ्रिक्शन को कैसे कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज इट. एंड बाय मिनिमाइजिंग आप भी सोचो कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को बहुत पॉइंट तक कम कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते. अगर नेग्लिजिबल कर दिया देन यू विल बी अ नेक्स्ट साइंटिस्ट. तो आप कोशिश कीजिए कि कौन कौन से रास्ते से फ्रिक्शन कम हो सकता है. Okay, so for today we are keeping up to this only. In next online session we will start with a 12.4 increasing and reducing friction. How we can increase friction and how we can reduce friction. क्योंकि कुछ जगह पे हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, so at that we have to increase friction. और कुछ जगह पे हमें बहुत कम फ्रिक्शन चाहिए. So how can we reduce that friction? We will discuss in the next online session. Till then, thank you.